Yesterday we were discussing about the symbolic anthropology. In symbolic anthropology, what we have discussed, that symbolic anthropology is actually depends upon the symbol. For them, symbols are the representation of culture. So why they study the symbols and their meanings, right? What is symbols all about? They are not rely on symbols, right? And what happens in symbolic anthropology, that is totally based, that culture is based on thoughts of the person, or culture is based on the thoughts of mind. As we started with the Levi-Strauss, what Levi-Strauss told, the social structure is totally based on human thinking, right? It means a man construct its word in terms of culture, and word first it is in thought. So whether it is symbolic anthropology or cognitive anthropology, they both believe that the culture is actually the process which is based on human thinking and thought. So they are more psychoanalytical in their study, right? And as we discuss, that not so philosophical, because generally we consider psychology as philosophy. Psychology talks about behavior, right? And philosophy talk about the morality and ethics in a society, the thought which is going on. So it is more or less about thinking pattern. What are the symbols? Symbols are the representative of cultures for a specific meaning, right? So symbolic anthropology was all about the searching the meaning of symbols, how a symbol represents a culture. So in this way, we started with the Levi-Strauss, right? Levi-Strauss tried to prove the culture through the culminatory process, that they all are the mind thing, right? As we discuss about he talked about two things as we discussed yesterday also. One was about myth, and second is culminatory processes, means the food, how they prepare food, how they serve food, significance food. So culinary process means process which are related with the practices. So he tried to prove it through practices in kinship, we and them, exchange of women, in food, French society, boiled and roasted, raw and cooked, and myth, the important factor, good or bad. And why myth are important? Because it makes status quo in a society, right? So this is about the Levi-Strauss. So for him, symbols are there which are the manifestation of human thought. Then the Geertz was there, right? Geertz, a German anthropologist. So to Geertz, symbols are the representation of culture. So he worked on Bali Island in the Indonesia and tried to prove this through his own interpretation, and on the basis of interpretation he actually conceptualized a new anthropological thought called interpretatory anthropology or interpretatory thought. So according to Geertz, all these symbols and study should be interpreted by anthropologists, and that interpretation is the base of all the study and all the postulates. So he actually emphasized on the interpretation rather than the raw material. As Malinowski said, what he said, that whatever you observe, you need to express it without interpreting, but what it said, you need to interpret it. So it is called interpretative anthropology. So there he worked on Bali's, on the different symbols of different religions, because Bali, we have it's a multicultural community having the Hinduism, Islam, Christianity, ethnic communities, and on festivals they have their own flags as their symbols. So how these symbols represent the specific culture. Then we discuss about the cockfight, the most important work, right, done by the
Geertz, and what he showed that how ceremonies, activities, or festivals symbolize the culture. So he took an example of cockfight in Java Island. And there he told that cockfight is not just an economic activity. It's a socio-cultural economical processes, and they all are related to each other. And there he made a study in two different ways. First he studied and second restudy method. In first studies, what you observed that in cockfight, cockfight is the representation of society in terms of social hierarchy, social rivals, kinship. Along with that, second thing was that actually fight is nothing. Fight is nothing. It is all about the culture. It is all about the society. Geertz was very much influenced by Max Weber, which says that behavior is the pattern of culture, right? So to know a culture, you know to know the behavior in a culture, how people behave. So he was focusing on the behavior at the time of cockfight, how people are aggressive, how society are there, how rivalry is going there. Deep rivalry, deep fight. Shallow rivalry, shallow fight. So on this basis, he postulated deep fight and shallow fight. And this cockfighting is actually, it's an economic thing, gambling is there, but it is overlapped with the socio-cultural activities like face masks, wearing face masks, different color things, different patterns of clothes, dance, music. So the cockfight covers entire phenomena of a culture, social, political, economical, cultural, all the aspects. But in second study, when he again restudied the same society, what he found that with the course of time, this activity reduced to economic only, because first government banned the cockfight as the gambling. Second, now people are more or more interested in the economy, gambling only. So socio-cultural part reduced that. So to them, with the course of time, cultural elements change, right? Change, degenerate, add, new, modify. So it is the process. And in this process, the most important thing, he interpreted all the things by his own side. So this is called interpretatory theory. So after Geertz, we have discussed about the Victor Turner. The second was Turner worked on the Zambe tribe of Ndumba. There, as we discussed, that Victor Turner was more or less influenced by Emile Durkheim, right? And Durkheim worked on totem, and totem is a symbol of a tribe, a sacred symbol of a tribe. And there, totem belongs to the social processes rather than cultural processes, right? So to Victor Turner, a symbol is actually a symbol of society, social structure, social pattern, social behavior. So as Geertz focused on culture, Victor Turner focused on society, because he belongs to the British anthropologist. And Victor Geertz, German. So American German culture, British social. So he, according to him, the symbols are the manifestation or the structure, denotes the structure of society. So there he, in the which tribe? Which tribe? I will not Dumba. Zambi tribe. So in Zambi tribe, what he observed that the all rituals, rise to passage or sanskara, culture, ceremonies, festival, they all are revolved around a tree, which is called a tree as Madhai tree. So there, this Madhai tree is a symbol of a society, right? Where all social activities revolves around this tree, right? And a social activity belongs to a social structure or social life, and that life is regulated through rites of passage.
What are rites of passage? A regulation of life in different orders, right? What we have sanskara, 16 sanskara at different stages of life. We shows different stages of life, and the most important, the process of socialization, right? So the process of socialization is revolved around this tree. So this tree actually symbolize the social processes, society, social structure. So symbols are there which represents social processes, right? So their cultural behavior processes, here social process. So there it was behavior, here it was process, right? And the symbol of process is the Madhai tree. This was Victor Turner, and discuss the rites of passage. Then we discuss about the Mary Douglas. Mary Douglas told that symbols are not beyond the human. Our human body symbolize a whole culture actually, right? So to Mary Douglas, our body is a symbol. Human body is a symbol. So there she took an example of a sacred thing. So what happens in sacred? A sacred is a complex of purity and pollution, purity and dirt. So when we say sacred, it should be pure and out of the dirt and pollution. Say you go to the temple, right? I discuss, you go to the temple, तो वहां पे भगवान तो sacred है, तुम्हारा नहाना जरूरी है, नहाना, एक सही तरह की पोशाक, like purity, right? So things can be sacred in one way if purity and dirt both concept are there, right? Body is a combination of purity and dirt both. कहते हैं your soul is, spirit is pure, but this body is impure, right? So purity and dirt is always run together, right? So to be sacred there is a purity as well as dirt or pollution. ये कहा था मैरी डगलस ने. अब एक और नाम है इसमें स्मिड का, स्नीडर है, देखना कौन स्नीडर है ना, स्नीडर है स्मिड है, स्नाइडर है मेरे हिसाब से तो. नाउ वी द स्नाइडर हैज द वन मोर. Turner Snyder, right? Snyder. So one is now Snyder. लिखो Snyder. Snyder, right? सेम हम जो सुनते हैं ऑडियो में, दैट स्नाइडर, स्नाइजर बोलते हैं, स्नाइडर है वो स्नाइजर है. स्नाइजर, नाइजर, कोई SC को भी पैक कर देता है, राइट? तो स्नाइडर actually he work on the Yak community of Micronesia, the Yak of Micronesia. राइट? एक बार इसको समझो, देखो क्या कहता है ये. स्नाइजर क्या बोलता है कि like he studied on kinship theory. So to him what
in America or Europe study, what they believe that kinship is a biological thing. It's a biological process. And what we believe in kinship in a nuclear family, what is kinship? A socialization of a biological unit, right? And what are the relationship in kinship? What relationship we have in kinship? Marital procreation, what we take, affinal king and consequence kins. Means for the society, kinship means the biology, sexual reproduction, kinship related with the reproduction. If we take the need, kinship is belongs to reproduction. It means kinship is a biology term, right? To Snyder, it is not a biological term. He actually, like Malinowski worked on Trapezoid Island, where Malinowski found that kinships are not based on biology. It is rather based on culture, right? There were many kins which were not based on biological terms, yet they were part of the kinship system, kinship relations, right? So to Snyder, kinship is actually a cultural process, not a biological process. So to him, he actually detached culture from other things. To him, culture is culture, right? And the cultural terms or elements should be defined in cultural way rather than biological or other ways, right? So what is said that in a society we have two different type of life, cultural life and a normative life. What is a normative life? It's like what we people expect के बच्चे को पिता की बात मानना चाहिए. Father should be supportive to the family. Mother should be take care of the family, right? So ये norms है. ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है. But norms are not representation of culture. The culture process is a part of normative process. But culture is not norms. जो आप डे टू डे में करते हो, इट डजेंट मीन कि वो आपकी कल्चर का हिस्सा है. वो नॉर्म्स भी हो सकते हैं, पैटर्न भी हो सकते हैं, कल्चर हो जरूरी नहीं है. कल्चर के लिए कल्चरल एक्सप्रेशन, कल्चर बिहेवियर जरूरी है, जो कल्चरल फॉर्म में ही जाना जा सकता है, राइट? जैसे हमने वहां पर डिस्कस की, अडॉप्टेड चाइल्ड बायोलॉजिकल है क्या? अडॉप्टेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या? नहीं. कौन सा प्रोसेस है? कैन यू डिफाइंड अडॉप्ट दिस adoption of child in terms of kinship as the blood relation and reproduction concern? नहीं ना. यही बात वो कह रहा है, कल्चर इज डिफरेंट. सो ही ट्राइड टू सेपरेट इनसिग्निफिकेंट फ्रॉम सिग्निफिकेंट. वो ही कहता था कल्चर इज कल्चर, राइट? एंड कल्चर को कल्चर के प्रोसेस, यानी कल्चरल चीजों को कल्चर के प्रोसेस से ही जाना जाना चाहिए. ये उसका वर्क था. और वो कहता था कि एक्चुअली इसको बायोलॉजिकल कहना, रिप्रोडक्टिव कहना, एक तरह से एथेनोसेंट्रिसिज्म है. बिकॉज इन अमेरिकन सोसाइटीज मे बी किनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, बट नॉट इन ऑल सोसाइटीज ना. सो दिस सोसाइटी want to generalize kinship terms in terms of biology, right? But it is not always so. जैसे in India, गॉन्ड्स में हमने पढ़ा है बहुपति प्रथा होती है, पॉलीएंड्री होती है. सो इन गॉन्ड्स जैसे कोई बच्चा हुआ, राइट? पत्नी एक के पति पैटर्नल है, टोडा में भी है, हमने देखा है,
तो अब उस लड़के का फादर कौन होगा, राइट? तो देयर दे हैव अ बो एंड एरो कस्टम. इन दैट कस्टम जो हस्बैंड में से उस बच्चे के हाथ में बो एंड एरो दे देता है, वो बच्चा उस नाम का हो जाता है, राइट? इररिस्पेक्टिव टू द बायोलॉजिकल फादर. अब वो हर बार अपना डीएनए टेस्ट तो नहीं करवाएंगे ना बच्चे का कि पैटर्निटी किसी है, राइट? सो टू recognize the paternity they have social processes, not the biological process. Clear? So in this term what Snyder said that culture is truly a culture process. It should not to connect with the biological. So all the cultural terms should be reflected through culture only. आप इसको बायोलॉजिकल मत बनाओ, और जहां पे इसको बायोलॉजिकल माना गया वो वहीं रहने दो ना. उसको जनरलाइज करके सब पे क्यों ला रहे हो भाई? तुम्हारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बाकी जगह थोड़ी है. तो अगर तुम अपनी बात सबके लिए कहोगे तो एथनोसेंट्रिसिज्म हो गया. यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन कल्चर, राइट? ये बात स्नीडर कहता था. क्लियर? कल्चर इज कल्चर, राइट? एंड इट इज वेरी पर्टिकुलर. तो जो आप डेली बिहेवियर करते हो, जरूरी नहीं कि सारा बिहेवियर कल्चर का ही पार्ट है. वो नॉर्म्स भी हो सकते हैं जो कल्चर में हो भी और नहीं भी. क्या तुम्हारे पूरे दिन भर का बिहेवियर तुम्हारी कल्चर का पार्ट है? बता. एक दो ऐसी चीजें बताओ जो तुम्हारे कल्चर का पार्ट नहीं है. दिन में ऐसा कोई बिहेवियर जो कल्चर का पार्ट नहीं है. सही सोचा कर, आंखों में शैतान चमक रहे इसके. What? एक पूरे दिन में if we people are influenced by so many things, right? And all things are not the part of our culture. We are directly connected to the media, and in media we go through so many things which are not actually the culture, right? वो कल्चरल नॉर्म्स भी हो सकते हैं, प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? और हम उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, राइट? तो ये सब चीजें जरूरी नहीं कि वही हो. कुछ चीजें नॉर्मेटिव भी हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी कल्चर ही हो, राइट? जैसे मान लो कि हमने कहा है कि भाई जैसे कुछ कल्चर में ऐसे कस्टम्स होते हैं जो कस्टम्स मान लो जनरल सोसाइटी में नहीं होते हैं, बट वो वहां के नॉर्म्स है. क्लियर? बट वो जनरल सोसाइटी में कल्चर का पार्ट नहीं है, बट उस सोसाइटी के लिए वो नॉर्म्स है और वो व्यक्ति वो नॉर्म्स करता है, राइट? बट जरूरी नहीं कि वो नॉर्म्स कल्चर का ही पार्ट हो. वो सिर्फ एक ऑर्डर हो सकता है, एक 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 परिवार का एक लाइफ ऑर्डर हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो नॉर्म हो, कल्चर का पार्ट हो. जैसे डाइटिंग हैबिट है, डाइटरी हैबिट है. हमारे कल्चर की हो सकता है डाइटरी हैबिट अलग हो और आपके नॉर्मेटिव सिस्टम अलग हो, राइट? दोनों में बहुत फर्क हो सकता है. जब आप कोई डाइटरी हैबिट को फॉलो करते हैं तो वो जो डाइटरी हैबिट आप जो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आपकी कल्चर का पार्ट हो सकता है? अगर आप एक डिफरेंट टाइप की लाइफ शुरू कर दे तो मान लें आपको नॉर्म्स कहा गया कि आपको दिन में ये खाना है और इतना खाना है, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कल्चर, फिर भी तुम कर रहे हो बिकॉज नॉर्म्स है, तो जरूरी नहीं कि आपके सारे बिहेव कल्चर का ही पार्ट हो. ये भी मैंने आपको ये भी कहना कि नाखून नहीं काटना है, बृहस्पतिवार को नहीं नहाना है, जब और आपकी जॉब ऐसी जिसमें आपको सब कुछ करना पड़ रहा है ड्यू टू नॉर्म्स, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कल्चर प्रैक्टिसेस. तो यही स्नीडर कहता है कि सारी चीजें कल्चर नहीं होता है. कल्चर इज कल्चर, नॉर्म्स आर नॉर्म्स. सो नॉर्म्स आर नॉर्मेटिव. सो ही ट्राइड टू सेपरेट द जनरल लाइफ एंड द कल्चर लाइफ, कि हर चीज जो आप जी रहे हो वो कल्चर नहीं, जो वो जरूरी थोड़ी है. आप हर चीज को कल्चर मान बैठोगे तो इसका मतलब मॉब लिंचिंग भी आपके कल्चर का पार्ट होगा, जो गलत चीजें हो रही वो भी कल्चर का पार्ट होगी. सब तो नहीं है ना. सो कल्चर इज क्वाइट स्पेसिफिक टू स्नीडर. समझ में आया?
सो वो कल्चर को कल्चर प्रोसेस के रूप में देखता था, कल्चर को स्पेसिफिकली कल्चर मानता था, इसीलिए उसने किनशिप को आधार माना। किनशिप, वी नो द किनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन कल्चर टू डिफाइन द रिलेशनशिप, मेंटेन द रिलेशनशिप, सब चीजों के लिए मेनली किनशिप है। तो उसने किनशिप को बेस बना के बोला कि किनशिप इज ए प्योर कल्चरल टर्म, नॉट अ बायोलॉजिकल टर्म, राइट? देन किनशिप शुड बी स्टडीड इन कल्चरल वे, नॉट इन बायोलॉजी। ये इसका क्रक्स था स्नीडर का, कल्चर इज कल्चर। एंड in a general life, in a daily life, day-to-day life, what we live is a part of our normative behavior, not the cultural behavior. So each and every behavior is not the part of our culture. ये बात इसने कही थी। हाँ, culture is a part of, culture process is a part of normative process, but all culture processes are non-normative process, and all normative are not the cultural. यही बात देखो स्नाइडर को, राइट? स्नाइडर studied studied kinship system in American society. In American society, kinship is associated with reproduction and sexual behavior. Reproduction and sexual behavior. So it is more or less denoted in biological term. To Snyder, kinship is not always a biological term. In many societies, kinship is not based on blood relation or marriage. So defining kinship as biological unit is an ethnocentric approach. एच खा गए हो, ETH होता है ethnocentric approach, right? So kinship should defined in cultural way. To Snyder, day-to-day behavior does not represent cultural behavior. He tried to distinct
normative behavior to cultural behavior. Right? So Snyder क्या कर रहा है वो कहता है कल्चर शुड बी डिफाइंड इन कल्चरल वे ओनली. सो ये लिख लेना उसकी एक लाइन, कल्चर शुड बी डिफाइंड. फर्स्ट बात, ही ट्राई टू डिस्टिंग बिटवीन जनरलाइज बिहेवियर एंड कल्चरल बिहेवियर. बात कर लिया. ही ट्राई टू डिस्टिंग बिटवीन जनरल बिहेवियर एंड कल्चरल बिहेवियर. जनरल जिसको हमने नॉर्मेटिव बिहेवियर कहा. दूसरी बात, ही ट्राइड to detach the kinship term from a biological term, right? Because kinship is a cultural process, not a biological process. तो स्नाइडर का ये काम रहा इन सिंबॉलिक. अकॉर्डिंग टू kinship is the symbol of culture, not the biology, right? So kinship is the symbol of culture, not the biology. So उसके लिए सिंबल तो था, तो उसके लिए कल्चर एंड सिंबल दोनों बहुत मीनिंगफुल थे. राइट? तो कल्चर का रिप्रेजेंट, जो कल्चर के जो सिंबल्स है वो कल्चर के एलिमेंट्स है, एंड दीज एलिमेंट्स शुड बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ कल्चर ओनली. यही स्नीडर का कहना था. ये काम था स्नाइडर का. राइट? इसने वही थ्योरी जो लेवी स्ट्रॉस था उसको बड़ा किया कि जो जैसा थॉट ऑफ माइंड होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है. सो इन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट देयर थॉट ऑफ माइंड इज प्योर बायोलॉजिकल बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द न्यूक्लियर फैमिलीज, एंड इन न्यूक्लियर फैमिलीज ब्लड रिलेशंस आर कन्वर्टेड इनटू सोशल रिलेशंस. राइट? ब्लड रिलेशन आर कन्वर्टेड बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, अब ब्लड रिलेशन इज ए सोशल रिलेशन, क्योंकि वहां पे किनशिप के नाम पे कौन है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर. So for them, the biology is sociology. They converted biology into society, right? But it is not true for all the societies. तो इसी ने कहा था कि ये ह्यूमन थिंकिंग मैनिफेस्टो है, इसमें सिंबल और कल्चर दोनों को सही तरह से मीनिंग लेना चाहिए. राइट? क्योंकि ये अबाउट थॉट, जो लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड. तो उसने कहा थिंकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सोसाइटी टू सोसाइटी. दिस शुड नॉट बी जनरलाइज. अ जनरल बिहेवियर कैन नॉट बी द कल्चर बिहेवियर ऑलवेज. क्लियर? ये स्नाइडर है. तो यहां पर हमारा सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट होता. राइट? अब थोड़ा कॉग्निटिव पे लिख लो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा देखना. कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट द सिंबॉलिक. इसको एथनोसाइंस भी बोलते हैं, न्यू एथनोग्राफी भी बोलते हैं. राइट? सो इन लोगों में क्या होता है, व्हाट दे आर प्योर साइकोलॉजिस्ट. प्योर साइकोलॉजिस्ट. फॉर देम द होल कल्चर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन वर्ड. राइट? वो क्या कहते हैं कि द ह्यूमन क्रिएट्स इट्स वर्ड थ्रू कल्चर. ह्यूमन creates its word through culture. So सारा कल्चर मैन्युफेस्टेशन है उनका, और वो सारा किस पे, थॉट पे. तो उनके लिए फॉर दोज पीपल सिंबल एंड कल्चर both are meaningful. Look, for symbolic anthropologist, what is meaningful? How culture is symbolized, how symbol signify culture. So they study culture they study symbol to understand the culture, because for them symbols are the representation of culture. So their total focus studies on culture only. Culture only. And for culture, they study symbol. So for them to know the meaning of culture, कि culture और symbol क्या है culture के लिए, that is important.
For cognitive, both are important. Symbol as well as, यहां दोनों का फर्क दे. वो कहते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कल्चर. ये कहते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों. बोथ आर द साइको एनालिस्ट, बोथ आर साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बोथ बिलोंग टू साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. और बहुत कम फर्क है, बोथ आर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बोथ आर सिंबॉलिक. बस थोड़ा सा फर्क क्या जाता है कि वो दोनों को सिग्निफाई करते हैं और ये किसको सिग्निफाई करते हैं, कल्चर. राइट. सोशल प्रोसेसेस कल्चर को, चाहे वो कॉक फाइट हो, तो कॉक फाइट में वो कॉक को सिग्निफाई नहीं कर रहा है. वो क्या बोल रहा है, गिट्स क्या बोल रहा है कि कॉक फाइट इज नॉट द फाइट ऑफ कॉक, इट इज द सोशल लाइवलरी, सोशल प्रेस्टीज, सोशल रेपो, पॉलिटिकल हेजिमोनी, सारी बात करता है ना, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन. सो फॉर गिट्स कॉक फाइट इज इनसिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट क्या है, कल्चर. राइट. एंड दैट कल्चर इज सिंबलाइज्ड थ्रू दैट सिंबल. और कॉग्निटिव के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, सिंबल भी और कल्चर. वो जब सिंबल को देख रहे हैं तो सिंबल का मीनिंग भी जानते हैं. they discuss about symbol and culture both. उनके हिसाब से कल्चर का मैनिफेस्टेशन सिंबल का मैनिफेस्टेशन है और सिंबल की वजह से कल्चर का मैनिफेस्टेशन होता है. राइट. so they more or less focus on symbol, so they deal with the symbol as well as culture. जैसे इसमें दो लोग हैं, राइट. एक डेविड टाइलर है, एक क्लिंटन है. ये देखो, कॉन्कलिन एंड टाइलर. अब कॉन्कलिन क्या बोलता है, अब कॉन्कलिन सिंपल एग्जांपल देता हूं. कॉन्कलिन वर्क ऑन होनोहू ट्राइब ऑफ फिलीपींस, होनू ट्राइब ऑफ फिलीपींस. सो इन दैट ट्राइब those people use different color for the different culture representation, right? Wet colors and dry colors. So these wet colors and dry colors denote the different cultural aspect. Color is the same, but wet and dry, right? This was the pattern in the Hanoi, Philippines to show the culture. किसके लिए, फॉर ईच एंड एवरी रिलेशन, फॉर ईच एंड एवरी पैटर्न दे हैव डिफरेंट कलर. तुम्हारे लिए ब्लू वेट है, उसके लिए ब्लू ड्राई है, उसके लिए ग्रीन वेट है, उसके लिए ग्रीन ड्राई है. सो दे हैव डिफरेंट कलर. अब सिंपल उठ के हम लोगों पे आओ. हम लोगों का जो क्लोथिंग पैटर्न का जो कलर है, क्या वो एक ही होता है या अलग अलग होता है? आपने जाते हुए देखा एक लेडी को जिसने पीले रंग का लहंगा पहन रखा है और पीले रंग की तारा तारा वाली ओढ़नी पहन रखी है. कौन है? मीना. राइट. एक चुंदरी वाली साड़ी पहन रखी है, क्या बोलते हैं उसको, बंदेज की. एक गहरे बंदेज की साड़ी पहन रखी है, यहाँ पे बंद है और आज से करके लॉकेट डाला हुआ है गले में, इतना लंबा, और ऊंचा सा घूंघट से यूं चल रही है ओढ़नी. कौन है? शेखावटी. राइट. इतना बड़ा बोरला है, उसके ऊपर एक वो डाली है ओढ़नी सी, राइट. और इतने बाजू का शर्ट पहना हुआ है. कहाँ का गया? नौर बादरा, हरियाणवी टच. राइट. तो क्या वी डोंट हैव डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट सिंबल्स? क्या नहीं है? है ना. हमारे शादियों में रंग का उपयोग, सफेद नहीं पहनना है, लाल और गुलाबी पहनना है. राइट. क्लियर. एकदम लाइफ का, शादी का कलर अलग, डेथ का कलर अलग. शादी से पहले लड़की क्या कपड़े पहनेगी, शादी के बाद और पति की डेथ के बाद कलर सिंबलाइज. तो यही बात ये कह रहे कौन कि सिंबलाइज ऑफ कल्चर. उसकी जो बुक है द होनू एंड डिफरेंट कल्चर्स, होनू
and their different cultures, different colors. तो उनके हिसाब से कलर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर, राइट? कलर इज द, सो ही स्टडीड कलर्स सारे, ये कैसे कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण टाइलर देता है। टाइलर वर्क ऑन कोया, द साउथ इंडियन ट्राइब, कोल, कोया, खोंड, राइट? तो दे ऑल वर द उड़ीसा का जो पार्ट है, उड़ीसा का, वहां पे कोल है, कोया है, खोंड है। तो कोया में क्या होते हैं कि इन जनरल हमारे पास बेम्बू बेम्बू ही होता है ना, दे हैव 7 डिफरेंट टाइप ऑफ बेम्बूज, मतलब उनमें बेम्बू भी 7 अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन और अलग अलग चीजों के लिए। हमारे लिए तो बेम्बू मतलब बेम्बू है, बट उनके लिए वो 7 अलग अलग तरह के बेम्बू है। जैसे एक लड़के के लिए पिंक पिंक होता है, और एक लड़की के लिए वो 28 तरह का पिंक होता है ना? आप जरा एक बार मार्केट में जाके एक लिपस्टिक पूछ लीजिए पिंक कलर की, आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि आपको पिंक कितना समझ में आता है, कि ड्रम टैंक पिंक है, कि फ्यूजन पिंक है, कि पिंक पिंक है। तो इट हैपन्स। सो इन जनरल फॉर्म पिंक इज पिंक, बट इन स्पेसिफिक फॉर्म पिंक इज नॉट जनरल पिंक। सो द सेम थिंग इज इन कोया। तो कॉग्निटिव थ्योरीज ये कहती है कि थ्रू दैट दीज सिंबल्स actually have these symbols are the culture. These symbols are the culture, right? Right? So culture is represented by, not symbols represent the. तो 2 एग्जाम्पल लिख लो। कॉग्निटिव वैसे भी नहीं आने का होता। कॉग्निटिव थ्योरी जब भी आएगी ना, वो तुमको सिंबॉलिक के रूप में पूछेगा। टुडे एक्चुअली दे मिक्स्ड बोथ, राइट? अभी क्या कर रहे हैं, वो इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ये राइट? सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव किसके नाम क्या डालूं? सिंबॉलिक किसके नाम के डालूं, राइट? एंड कॉग्निटिव में कौन है? टाइलर एंड कॉन्क्लिन। लिखो कॉग्निटिव। कॉग्निटिव थ्योरी, cognitive theory approaches to psychology, approaches to psychology where culture is the manifestation of thought of the mind. It is also termed as, it is also termed as ethnoscience or new ethnography. Right? Ethnoscience or new ethnography. अब पहला लिखो, these people, नीचे में लिखो, these anthropologists, this emphasize on the meaning of symbols and culture both. Which differentiate them from symbolic anthropology. Which differentiate them from symbolic anthropology. Otherwise, these are the symbolic anthropologists, right? अब लिखो कॉन्क्लिन। कॉन्क्लिन, कॉन्क्लिन वर्क ऑन, कॉन्क्लिन वर्कड ऑन, कॉन्क्लिन CONKLIN, कॉन्क्लिन वर्कड ऑन होनुलू
HONNLU of Philippines. राइट इसकी बुक है होनुलू एंड कल्चर, डिफरेंट कलर्स, होनुलू एंड डिफरेंट कलर्स, होनुलू एंड देयर कलर्स, होनु HONNULU, होनुलू एंड देयर कलर कल्चर, कलर कल्चर, राइट, होनुलू एंड देयर color culture. He worked on Honolulu in Philippines. There he observed different color pattern for different culture processes. कल्चरल प्रोसेसेस, IE वेट एंड ड्राई, या फॉर एग्जांपल जिसको बोलते हैं I.E होता है ना, आई एग्जाम में मत लिखना, यूपीएससी डज नॉट रिकॉग्नाइज, ना तो इसको रिकॉग्नाइज करती है ना इसको रिकॉग्नाइज करती है, नहीं करती है, राइट। हमारी आदत तो देखो साइंस वालों की ये बड़ी बुरी आदत होती है, कंसंट्रेशन बस CNC हो गया, विद एंड विदाउट। हाँ अब आप लिखोगे विद, ये है विद, ये है विदाउट, तो ये सिर्फ साइंस समझ सकता है विद एंड विदाउट, वो इस C को काट देगा अंडर एंड आउट, राइट। और गवर्नमेंट को प्लीज GOVT ना लिखेंगे आप किसी भी हालत में, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, हमारी आदत है GOVT, खत्म, गवर्नमेंट हो गया, वहां ये नहीं चलेगा। बिटवीन को भी कैसे करते हैं भाई साहब, बड़े ही बढ़िया तरीके से, राइट, ये बिटवीन नहीं चलेगा, नहीं, नो शॉर्टकट एट ऑल। और किसी का भी अगर एब्रीविएशन लिखना है तो पहले उसका फुल फॉर्म लिखो, राइट। वो ITI IIT एक शब्द के 100 शब्द होते हैं, आप खुद जानते हैं, राइट। तो उनके लिए IT, अगर आज आप IT डाल दो ना किसी के अंदर, आप इसमें गूगल पे भी, तो वो अलग अलग निकाल देगा, राइट। तो आप प्लीज पहले पूरा लिख के उसके साथ उसका एब्रीविएशन लिखिए, देन यू कैन यूज योर एब्रीविएशंस एट ऑल, राइट। तो एंथ्रो में भी ध्यान रखिएगा कि आपको ये आई की जगह फॉर एग्जाम्पल, राइट, और एग्जाम्पल में प्लीज EG ना लिखें, फॉर एग्जाम्पल, या EX, कोई EX लिखता है कोई EG लिखता है, बस पूरा एग्जाम्पल लिखने के लिए फॉर एग्जाम्पल लिखना पड़ता है ना, तो बस EG, लाइक, आप यूज वर्ड लाइक कर सकते हो ज्यादातर, लाइक क्या है ना, that you can use as an example. So he worked on and culture pattern wet and dry, right? I in wet and dry. So Clifford क्या कहता है, that culture, the symbols and cultures both are, क्या finally क्या हुआ, symbol and culture both are meaningful, culture represented by symbol and symbols are represented by culture, so both are very prominent at its place, right. We cannot say that symbols are just symbols of culture, no, symbols have their own meaning also, है ना। ये क्या है, क्या ये सिर्फ सिंबल है हिंदू धर्म का, नहीं, it is not just a symbol only, it has its own meaning, स्व अस्तित्व, राइट, हमारे होने का, चारों दिशाओं का, 8 दिक्पालों का, ये सबका एक सिंबल है, राइट। आप श्री गणेशाय नमः से पहले ये लिखते हो ना, सिंबल का भी एक मीनिंग होता है। तो उन्होंने कहा कि सिंबल इज नॉट जस्ट टू डिफाइन कल्चर ओनली, सिंबल ऑल्सो हैज ए मीनिंग। So knowing the meaning of symbol means knowing the meaning of culture. Clear? So उनके लिए जैसे अगर यही कॉग्निटिव वालों को राइट टू पैसेज में डाला होता तो पहले संस्कारों को जानते
कि उनका मीनिंग क्या है। वैसे ही नहीं कहते कि राइट्स टू पैसेज आर देयर टू रेगुलेट द सोसाइटी ओनली और लाइफ ऑफ अ पर्सन ओनली और ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। नो, टू देम अ राइट्स टू पैसेज आल्सो हैज ए मीनिंग and that meaning truly defined the culture, right? Symbols are not only symbol, जैसे आपने कहा पेड़ एक सिंबल है, नहीं, उसने कहा इसका मीनिंग है, इसका अपना एक मीनिंग है। ये बात कौन कर रहा है? अब लिखो टाइलर, डेविड टाइलर। देखो टाइलर दो है, ई बी, ये है डेविड, इस पे प्लीज डेविड टाइलर लिखना, वरना दो टाइलरों को मिक्स कर जाओगे। टाइलर वर्कड on Koya tribe of India. Koya, 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 कोल कोया खोंड। जब आप पढ़ोगे ना ट्राइबल रिवोल्ट इन मॉडर्न इंडिया, तो वहां पर कोया विद्रोह हुआ था, एक रिवोल्ट है कोया। राइट, सो कोया, क्या लिखा हमने? टाइलर वर्कड ऑन कोया ट्राइब इंडिया, वेयर वेयर where he observed 7 different type of bamboos, distincted by the tribe, where in general there is just a simple bamboo. राइट, ये कॉग्निटिव के बारे में है, दोनों ने लिखा है, टाइलर ने भी और। तो तुम्हारा जब क्वेश्चन आए ना, तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें ये बताना है इन क्वेश्चन में, वर्ड्स में, लाइंस में, बैम्बू में, कि 7 टाइप ऑफ बैम्बू का मतलब समझो। इट इज जस्ट ईच एंड एवरी बैम्बू इज एक्चुअली हैज ए मीनिंग, एंड दैट मीनिंग एक्चुअली डिफाइंस द कल्चर और कल्चर प्रोसेसेस or cultural elements. So to them these symbols are like cultural elements, cultural processes which defines culture as a whole. They are not just the symbol of culture, no, actually they have their own meaning also. So cognitive anthropology actually emphasize on the meaning of symbols as well as culture, दोनों को मान के चल। And in this term, जैसे हमने कहा था कि it is different from the it is different from the symbolic anthropology. ठीक है, ये अपना था कॉग्निटिव। एक हमने पढ़ा था पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, राइट? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, post modernization, right? So as we discussed there also, so these people actually वो क्या कहते हैं कि there is no true knowledge which is accumulated at any point or any text or any observation. There is no true knowledge. They all have relative knowledge which is not absolute truth. Why so? To them, उन्होंने क्या किया? They made a flow chart. This is the a political and economic elite class, the influential people, the dominant people. How these people control the
Science. What is science? Science is all about the truth. And through this truth, we build a society. Right? Science is all about the facts. All of the facts which are proved. It means all the facts which are proved, they build a truth. And on the basis of the truth, a society builds. Right? But in this term, a society is indirectly in control of, right? Because society is based on, truth is based on, and science is controlled by. सारे संसाधनों पर साइंस के कौन कंट्रोल करता है? क्या एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, क्या रिजल्ट आने चाहिए, कौन कहां जाना चाहिए, ये सब कंट्रोल कौन करता है? साइंस वालों को रिफंड का पैसा, रिसर्च का पैसा कौन देता है? ट्रूथ को मैनिपुलेट कौन करता है? Right? If a truth is against the elite class, will it be survive? Right? Will the scientist will survive? No. अगर ऐसा होता तो कोरोना होता क्यों? बायोलॉजिकल वेपन होते क्यों? राइट? साइंस तो कब की, फिर नोबल होनी चाहिए। बॉम्ब कहां से आ गया? न्यूक्लियर बॉम्ब कहां से आया? ये सारे वेपन्स कैसे बन रहे हैं? बिकॉज साइंस इज कंट्रोल्ड बाय एलीट क्लास। वरना वेपन बनाने की जरूरत क्या है इस देश में? आप वेपन बनाना बंद करो, लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ना। आपको शराब पे टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? फैक्ट्री बंद कर दो। टैक्स लगाने की क्या जरूरत? बंद कर दो। आपने लिखा चेतावनी, खाना हानिकारक है, बंद कर दो। बनाना ही बंद कर दो, खाएगा कहां से? सिंपल हिसाब, नहीं करेंगे बनाना बंद, नहीं है। बस आप ध्यान रखिए अपनी तरफ से, सरकार ध्यान रख रही है रेवेन्यू का। सो इट ऑलवेज हैपन्स। वो कैंसर के अस्पताल खोलेगी, कैंसर की दवाइयां फ्री करेगी, उस पे जीएसटी हटा के 5% करेगी, है ना? बट कैंसर के कारण को बंद नहीं करेगी। वरना एक सेकंड लगाए सारे कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स पे रोक लगा दी जाए। किसी भी प्रोडक्ट में कहीं भी कोई कार्सिनोजेनिक फैक्टर नहीं होगा। कोई प्रोडक्ट ऐसा बेचा जाएगा जिसमें कार्सिनोजेनिक फैक्टर की कोई भी अंदेशा है। अगर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को खरबों का जुर्माना भरना पड़ सकता है स्किन कैंसर के लिए, दैट यू हैव हर्ड, कि जॉनसन जॉनसन बेबी पाउडर से स्किन कैंसर हुआ, उसको अरबों डॉलर का जुर्माना भुगतना पड़ा, राइट? तो आप कल आज कह रहे हो कि जी ये सब ठीक है, कल कह रहे हो कार्सिनोजेनिक है, तो आप पहले ही बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि पूरी ड्रग इंडस्ट्री जो है वो इसी पे बेस्ड है। फिर कैंसर के दवाइयों का क्या होगा? महंगे रिसर्चों का, इनका क्या करोगे? पैसा कहां से जनरेट करोगे? ड्रग एक बहुत बड़ा मार्केट है, फार्मेसी का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड का। अगर आप लोगों को आज कल से सबको सात्विक खाना है, कोई गुटखा पान सुपारी कोई दुकान वाला बेच नहीं सकता, ये बिल्कुल बैन है। जैसे हथियार बेचना, सड़क पे बेच सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल बैन कर दो, फिर देखो कैसे तुम्हारी दुनिया सीधी नहीं होती। पर नहीं करेंगे ना, यही बात तो कर रहा हूं। द होल साइंस इज कंट्रोल्ड बाय एलिट क्लास। वरना क्या साइंस के पास उपाय नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि साइंस को का पास उपाय नहीं? वो हर चीज का है। गिव देम फ्रीडम, वो तुम्हें सारी बीमारियों का इलाज लाके दे देंगे, पर नहीं करेंगे ना। एप्पल अगर अल्टीमेट फोन एक बार में बना दे तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जनरेशन कौन खरीदे? कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। एक फोन एक साल में नया कैसे हो सकता है? क्योंकि नया तो 5 साल पहले ही हो चुका है, बस उसको पॉइंट टू पॉइंट रिलीज किए जा रहे हैं। बस वो तो पहले चुका है। मैन क्रिएट्स हिज वर्ड थ्रू द कल्चर। ये पूरा वर्ड पहले से क्रिएटेड है यहां पे, राइट? सिंबोलिक एंथ्रोपोलॉजी वाले सही बोलते थे, होल थिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। माइंड पहले भी है, पर उनको इंटरप्रिटेटिव करके साइड में बिठा दिया। बट दे वर राइट, एक्चुअली हर चीज तो यहीं से निकलती है ना। यही बात ये कह रहे हैं। सो फॉर पोस्ट मॉडर्निस्ट पहली बात तो ये है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट? ट्रूथ इज नॉट ऑब्जेक्टिव।
right? Because it is controlled by a specific class. So कोई भी स्टडी जो सोसाइटी के लिए की गई है वो प्योर ट्रुथफुल नहीं है। तो क्या दो तरीके, अब क्या करें कि जो पहले स्टडी हो चुकी है उसके दो चीज हो सकती, एक होते हैं स्केप्टिक, ये क्या करते हैं, रिजेक्ट सारी स्टडी को, तो दे आर नॉट ट्रूथ। दूसरे होते हैं अफर्मेटिव, क्या करें, दोबारा इंटरप्रीट करो, इंडेपेंडेंटली करो। क्यों? बिकॉज दीज स्टडीज डू नॉट गिव अ ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो ईदर दे ऑल शुड बी और दे अगेन, राइट? दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो कहता है कि जितना भी एंथ्रोपोलॉजी ने आज लिखा है वो दो ही तरीके, या तो सारे को रिजेक्ट कर दो बिकॉज इट इज नॉट ट्रूथ, या फिर उसको वापस इंटरप्रीट किया जाए, रीऑब्जर्व किया जाए और दोबारा से एंथ्रोपोलॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो द आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बैठे बैठे इंटरप्रीट कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि वर्ल्ड में कुछ भी सच नहीं, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड। तो साइंस क्या है? स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी, साइंस। So all the systematic study made by people, they all are science, and through their science a truth happens and the society is built upon that truth, right? इसी ट्रूथ पर सोसाइटी जी रही है। तो कह रहा है कि पूरा सिस्टम ही गलत है, या तो इसको रिजेक्ट करो या इसको रीमॉडलाइज करो। ये है पोस्ट मॉडर्न, रीमॉडलाइजेशन और रिजेक्ट। तो आपके पास दो तरीके हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन, reconstruction, interpretative. So they use two different aspects, either deconstruction or interpretation. ये है पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, न्यू थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रूथ, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट the anthropologist in two form, skeptic or affirmative, either reject or interpret or observe again. ये जो है ये पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। एनी डाउट? अब आते हैं हम नियो इवोल्यूशनिज्म, नियो इवोल्यूशनिज्म। एक तो नियो, ऊपर से ईवो, ऊपर से ल्यूसन, ऊपर से इज्म। राइट? एक बच्चा था, बचपन लास्ट तक बच्चा ही बना रहा, राइट? ये तीन लोग हमारे कोर्स में, और एक चौथा है हालिन्स। हालिन्स एंड सर्विस। सर्विस का नाम सुना है? सर्विस का नाम सुना है? सर फेयर सर्विस, कहाँ सुना है वो? सर फेयर सर्विस का नाम कहाँ सुना है वो? हिस्टोरी में? मारो मारो मारो, मॉब लिंचिंग में जाओगे तुम, भीड़ मारेगी। सर फेयर सर्विस, ecological imbalance theory of decline of Harappa was given by Sir Fair Service, right? The decline of Harappa was due to the ecological imbalance between exploited and exploiter.
पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, रिसोर्सेज डिक्रीज्ड, ए पॉइंट वर केम जहां पर सारा का सारा सिस्टम डिक्लाइन हो गया, राइट? एट अ पॉइंट व्हेन सिविलाइजेशन रीचेज अप टू द क्लाइमेक्स, कल्चर क्लाइमेक्स का थ्योरी आता है, व्हाट इट सेज दैट एट वन टाइम अ कल्चर रीचेज टू, civilization reaches to its climax, and that point the civilization declines and culture diverts to other places, जो थ्योरी इंडस में दी गई थी कि एट द क्लाइमेक्स ऑफ द सिविलाइजेशन द एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशंस बिकम डिक्लाइनिंग, तो उससे क्या होगा, कल्चर जो है वो वहां से डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी, जो पहले एक जगह हुई थी वो डाइवर्जन शुरू हो जाता है। तो जो रूरल अर्बन बना वो वापस अर्बन का रूरल बन गया, कहां से आए थे वहीं को हो लिए, थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स। So non-evolutionism, neo-evolutionism is all about childhood. So to these people, there are two different type of evolutionism. The first is classical, and second is neo. Right? To these anthropologists, there were two type of evolution. First was classical evolutionism, and second is neo-evolutionism. Classical evolution in anthropology, अब हम इसको पीपल लिखे क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी कैटेगराइज इवोल्यूशनरीज इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, क्लासिकल एंड नियो, क्लासिकल एंड नियो। क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दीज पीपल बिलीव इन, ज्यादा तो हम कर चुके हैं इसको, राइट, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर हम कर चुके हैं। So these people believe in psychic unity of mankind. Psychic unity of mankind. Unilinear evolution. Simple to complex. In systematic stages. In systematic stages. तो ये हमने पढ़ा, दैट वॉज द क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड पे बात करता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे बात करता है, यूनिलीनियर कहता है फ्रॉम वन टू अनदर सेकंड, सेकंड टू थर्ड, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चेंज, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी, राइट, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी, जो ये बात कर रहे हैं, ये अपना हो गया क्लासिकल। एंड इसके कौन थे द प्रोपोनेंटर ऑफ दिस थ्योरी वर टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, माने बास्टिन, अगस्टन, पर हमें तीन ही ना याद करें, टाइलर, मॉर्गन एंड फ्रेजर। एंड दिस टाइलर इज ईबी टाइलर। ईबी टाइलर किसमें था, कॉग्निटिव, याद रखना, दिमाग ने बत्ती खाए, दोनों मिल जाएंगे तो अलग ही तूफान लाएंगे, एमे तुम एनिमिज्म को लिखोगे उसमें, राइट। न्यू एवोल्यूशनिज्म, to this new evolutionism, to this evolution is not a linear process. It is a parabolic process. It is a parabolic process. अब पैराबोलिक कैसे हुआ, तो भाई हमने कहा कि जी ये पहला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपका जो इवोल्यूशन है वो यूं चल रहा है, दिस वॉज बाय क्लासिकल, दिस इज बाय द इवोल्यूशनरी, न्यू इवोल्यूशनरी। वो क्या कहते हैं कि वन इवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर in a social process, in a society, varies, right? Then it takes a different direction of evolution, right? And after the development, it reaches to the same path.
बट with the modulation, with the changes. ये कहता है डिफरेंस में, ये कहता है कि सेम प्रोसेस में चल रहा है सब। एक प्रोसेस है वो एक सिंपल फॉर्म में आगे जाके दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आगे जाके तीसरा कॉम्प्लेक्स। ये कहते हैं नहीं, ये सोशल प्रोसेस जब इवोल्यूशन होता है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, राइट? और वहां जाके वो अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं और डेवलप होकर फिर अगली स्टेज में पहुंच जाते हैं। जैसे यहां से जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस निकले थे, क्या सबका एक जैसा डेवलपमेंट हुआ? इनके हिसाब से तो होना चाहिए था, भाई सब यूनिलीनियर है तो सबके सब हो जाने चाहिए थे। जबकि हमने देखा कि सिर्फ टूल टाइप चेंज हुआ, रहना तो चेंज नहीं हुआ, खाना वही रह रहा है, टूल टाइप चेंज हो गए। क्यों? और अगर टूल टाइप चेंज हुआ है तो बाकी भी तो चेंज होने चाहिए थे, बाकी भी तो चेंज होने चाहिए थे। तो सारे प्रोसेस एक साथ नहीं इवॉल्व होते हैं, एक प्रोसेस इवॉल्व होता है और वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, दूसरा इवॉल्व होता है डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, और फिर वो सारे जाके एक जगह वापस एक अगले स्टेज में मिल जाते हैं, जो उसकी अगली हायर स्टेज होती है, राइट? तो ये करेक्ट एक सीधी होती तो सारे एक जैसे फॉलो करने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता है, पैराबोलिक है। आगे जाएंगे, डेवलप होंगे, आगे चले जाएंगे, ये पैराबोलिज्म होगा, ये वाला इसको बोलते हैं पैराबोलिक, राइट? यहां से शुरू हुए, अपने डेवलपमेंट के जनित पे गए और वापस इस कल्चर का पार्ट बन गए। ये बोलते हैं, ये कौन बोल रहा है? ये निवोल्यूशनरी। सो इन दिस प्रोसेस क्या होता है? कल्चर अलग अलग प्रोसेस से निकलती है, राइट? और कुछ पॉइंट सेम होते हैं। तो कल्चर यहां से निकली C1 से C2 C3 C4, अलग अलग स्टेजेस होती है जहां पर ये पॉइंट्स वापस मिला करते हैं। और इन पॉइंट्स को उन्होंने क्या कहा जी? सेवेजेज, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन, एनर्जी रिवोल्यूशन, ठीक है ना? तो ये वो अलग अलग पॉइंट्स है जिसमें ये सारे इवोल्यूटेड जो प्रोसेस है ये वापस सही जगह आके मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? ये है प्रोसेसेज जो बोल रहा है न्यूवोल्यूशनरी, कि भाई ऐसा नहीं है कि ये सीधा चले, सीधे से तो सबका डेवलपमेंट समान होना चाहिए था और ये सारे एक बराबर डेवलप होके यहां मिलने चाहिए थे, अगले डेवलप होके यहां मिलने चाहिए थे। ऐसा तो नहीं होता है, कुछ यहां डेवलप ज्यादा हो गए, कुछ कम हो गए, कुछ कैसे रहे, फिर वो एक जगह आके मिलते हैं। और धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे होता है कि हो सकता है कि एक बार फूड क्रांति हो गई हो, कपड़े रह गए हो, कपड़ों में हो गई फूड रह गए हो, राइट? सिंपल चीज है ना? तो यही चीज ये बताना चाहते कि स्टेजेस वही है, स्टेजेस वही है, वही सेवेज, बारबेरियम, सिविलाइजेशन, स्टेजेस वही है, बट स्टेजेस पे इवोल्यूशन का प्रोसेस एक समान नहीं है कल्चर एलिमेंट्स में, इट इज डिफरेंट, राइट? अब वो डिफरेंट की वजह क्या है? कोई कहता है एनवायरमेंट है, राइट? कोई कहता है टेक्नोलॉजी है, कोई कहता है एनर्जी है। क्लियर? ये अलग अलग की वजह क्या हो रही है? वजह हो रही है इधर इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, कि आपके कल्चर प्रोसेस निकले सब बराबर, पर एडेप्टेशन कईयों का सक्सेसफुल और कईयों का नहीं हुआ, तो कई दूसरी जगह नए रूप में पहुंचे, कोई वैसे के वैसे पहुंच, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्लियर? तो ये विद द चेंज है, तो एक ने कहा एडेप्टेशन है, दूसरे ने कहा नहीं एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट हुआ, प्रोसेस चेंज हुए, डेवलपमेंट हुए, तो जहां जहां पर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा वो चीजें इवोल्यूशन होता गया। तो उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी इज द बेस ऑफ इवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी, जैसे क्लासिकल कहते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड जो है वो बेस है, राइट? एक जैसे लोगों का एक जैसे सोचना और फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ना, उनके लिए साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है। इन्होंने कहा नहीं, एक ने कहा कि बेस है एडेप्टेशन, एक ने कहा बेस है टेक्नोलॉजी, एक ने कहा नहीं एनर्जी। इसके हिसाब से तीनों पैदा हो गए, चाइल्ड, राइट? स्टीवर्ड। चाइल्ड क्या कहता है? चाइल्ड कहता है कि भाई रिवोल्यूशन, चेंज, जो बात करता है ना कि भाई तीन मेन प्रोसेस चेंज हुए, कौन कौन से हुए? फूड प्रोडक्शन,
अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो यहां पे एलिमेंट्स में क्या हुआ कि जैसे जैसे विद द कोर्स ऑफ टाइम टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, उतना ही उनमें रिवोल्यूशन का फॉर्म आता गया और प्रोसेसेस चेंज होते रहे। गॉर्डन साइल सीधी बात करता है। यही बात को स्टीवर्ट कैसे बोलता है? स्टीवर्ट कहता है कि कल्चरल एलिमेंट्स की मेन इंपॉर्टेंट चीज है अडेप्टेशन टू द सराउंडिंग्स, राइट। किसी भी इन्वायरमेंट में जब वो रह रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट के साथ उनके एलिमेंट कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, उसी वजह से चेंजेज होते हैं। उसका नाम था इकोलॉजी एंड कल्चर चेंज, राइट। इकोलॉजी एंड कल्चर, इकोलॉजी एंड चेंज, इकोलॉजी एंड कल्चर चेंज। तो वो अकॉर्डिंग टू जो इंटरेक्शन विद इन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट है, उस इंटरेक्शन की वजह से ये चेंज आता है। तभी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में आपको सिमिलर और डिफरेंट दोनों तरह की कल्चर मिलेगी। क्योंकि जिन्होंने एक जैसा अडेप्टेशन कर लिया वो सिमिलरिटी हो गई, और जो नहीं कर पाए वो डिफरेंस हो गया, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया। तो जरूरी नहीं कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में सबका खान पान एक जैसा हो, जरूरी है क्या? नहीं, मोरलेस डिफरेंट भी हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? कुछ लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो सकते हैं, कुछ नॉनवेज वाले हो सकते हैं। अपने यहाँ पे ना, अब राजस्थान के अंदर इतनी 50 डिग्री गर्मी के अंदर भी आपको तीतर, बटेर, हिरण, इनके नॉनवेज खाने वाले मिल जाएंगे, लाल मांस मिल जाएगा बहुत ज्यादा मिर्ची के साथ में। और एक तरफ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन मिलेंगे जो छूते तक नहीं, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा है। तो एक ही में आपको डिफरेंट कल्चर्स मिलेगी, डिफरेंट तरह के बिलीफ मिलेंगे। क्यों? एडेप्टेशन की, राइट। अब स्टार्ट करो लिखना। तो प्रोपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हो गए? गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ले वाइट एंड जूलियन स्टीवर्ट। तो सबसे पहले लेकर आओ गॉर्डन चाइल्ड को। गॉर्डन चाइल्ड, वही जो हमने पढ़ा था। सिविलाइजेशन, हायर बार्बेरिज्म, बार्बेरिज्म, सिविलिज्म। कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज, पैलेलिथिक, नियोलिथिक, कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज को हायर क्यों कहा है कॉपर से? आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्रॉन्ज में है, कॉपर में नहीं है, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आर्ट ऑफ राइटिंग, यूज ऑफ मिक्स अलॉय, यूज ऑफ अलॉयज। ब्रॉन्ज मीन्स यूज ऑफ अलॉयज, कॉपर मीन्स यूज ऑफ मेटल, सिंगल मेटल एंड अलॉय। तो ये अलॉय का यूज हुआ तो ये हायर हो गए। तो यूज ऑफ अलॉयज, आर्ट ऑफ राइटिंग्स, दोनों इनके पास में रहा तो ये सिविलाइज्ड हो गए। कॉपर के पास सिर्फ मेटल का ज्ञान रहा, सिर्फ सिंगल मेटल का, राइटिंग नहीं है, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं है, इसलिए कौन रह गए? हायर बार्बरिक रह गए। राइट। So to Gordon Child,
evolution is a universal phenomena where culture develops due to technological advancement. Right? Gordon Child discuss about three major steps of culture development. First, food production. Second, urbanization. And third, industrialization. He termed these phenomena as revolution. Right? For the study, Child used archaeological facts and evidences. Right? To child, the European civilization is the attribute of ancient civilizations. कैसे देखो, सबसे पहले कौन सी हो रही है? 4000 BC नियोलिथिक रिवोल्यूशन होता है. उसके बाद में 3000 BC के आसपास में आपकी इजिप्ट आती है. राइट? इजिप्ट के बाद कौन आ रहा है? इंडस आ रही है. इंडस के साथ कौन आ रहा है? चाइना एंड मेसोपोटामिया आ रही है. बाद में धीरे धीरे वो नीचे उतर रही है, तो फिर क्या आती है? फिर आपकी आती है पेरू, मैक्सिको. उसके बाद में आता है माया एंड इंका. 1500 में इंका आती है, और इंका के बाद आती है यूरोपियन. तो इन सिंपल फॉर्म अगर हम देखें तो नीचे कहां से शुरू होते हैं हम लोग? 4000 BC से, जब नियोलिथिक रिवोल्यूशन की बात करते हैं. राइट? ये आपका एनआर होता है 7000 to 400 4000. उसके बाद में आप किस पे आ रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? इजिप्ट की. इजिप्ट के साथ में यहां पे मेसोपोटामिया है, और साथ में कौन है? हड़प्पन है. राइट? हड़प्पन से आए यहां पे 3000 तक आपके पास चल रहे हैं. उसके पास अगर मैं वर्ल्ड वाइड फिनोमिना में देखूं आगे, तो मेरे पास कौन सा आएंगे? मेरे पास पेरू आएगा, उसके बाद मैक्सिको आएगा, उसके बाद माया और इंका आएगी, और उसके बाद यूरोपियन सिविलाइजेशन. माया एंड इनका दे बोथ बिलोंग टू दी इसमें सदर्न अमेरिका, चिली, पेरू, ग्वाटेमाला. सो सबसे नीचे 4000. ये इजिप्ट, मेसोपोटामियन, हड़प्पन के साथ लिखना चाहिए, यहां लिखना चाइना, चाइना, पेरू, मैक्सिको, इंका. राइट? पेरू, मैक्सिको, इंका, और उसके ऊपर यूरोपियन सिविलाइजेशन.
right? So this was Gordon Child, the theory of revolution. The first is food production or Neolithic revolution. Second, urban revolution. And third, industrialization. And what was their technological advancement? Technological advancement. And how he proved? Through archaeological evidences. जो उसने हड़प्पा से देखे हर जगह कैसे वन बाई वन ये चीजें एक दूसरे को पुट कर रही है, राइट? तो एक यूनिवर्सल फॉर्म बन रहा है, पैटर्न बन रहा है. तो ये यूनिलीनियर नहीं है, ये यूनिलीनियर नहीं है, यूनिवर्सल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, राइट? एंड दे ऑल वर नॉट सिमिलर इन नेचर, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पैटर्न. तो इसने इस चीज को लिया गॉर्डन चाइल्ड ने. सेकंड लिखो लेस्ले वाइट. लेस्ले वाइट Leslie White. Leslie White believed in the theory of historical materialism, cultural materialism. Leslie White was influenced by culture materialism. अब देखो कल्चर मेटलिज्म का एस्पेक्ट क्या कहता है? ये एस्पेक्ट ये कहता है कि बिहाइंड ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ कल्चर, इकोनॉमी एंड सब्सिस्टेंस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, राइट? एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन द कल्चर डिपेंड्स upon the economic and subsistence significance of that element. As we have discussed about the significance of cow in Indian society. Why it is significant? Economically significant, economically viable. So why it is called as the sacred animal in society. So the sacred, the totem, so the base of the sacred totem is all about economy, means materialism, right? So which element of culture will be signified or will be insignificant, it totally depends upon the materialistic aspect of that particular element. So this is culture materialism, right? So important thing is the viability, productivity of an element, how much productive it is, and production is denoted with the energy, right? So to Leslie White, when energy or productivity meets with the technical advancement or technology, it develops a right. So it is more or less based on investment of energy, harnessed the energy, right? Harnessing or investment of energy per capita per year. So the development of culture is based upon the harnessing or investment of energy per capita per year in a culture. So in different culture, they are different in terms of investment of energy.
and with the course of time, when they are technically advanced, right, more energy will be exerted, more development will be there, right? So technology is the main thing, right? What type of technology you have? हमने बात की थी ट्राइबल कल्चर की, इकोनॉमी के अंदर एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था टेक्नोलॉजी के बारे में? कैसी टेक्नोलॉजी है? ट्राइबल की टेक्नोलॉजी कैसी होती है? हाई टेक्नोलॉजी, हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी कि लोअर ग्रेड? लोअर ग्रेड टेक्नोलॉजी. सो लोअर ग्रेड टेक्नोलॉजी है तो लोअर प्रोडक्शन है, लोअर प्रोडक्शन है तो सब्सिस्टेंटिव इकोनॉमी है, राइट? सब कुछ जो है कंजप्शन के लिए है. जब कुछ है ही नहीं तो पैसे की वैल्यू कहां से पता लगेगी? जब कुछ बेचने को नहीं है तो हाउ कैन यू से कि जी पैसा हमारे लिए किसी काम का नहीं है? पहले कमाइए, खूब सारा कमाइए, फिर बोलिए कि सब मोह माया है, पैसा किसी का. बट बिफोर दैट हाउ कैन यू से दिस? क्लियर? सो ही एक्चुअली Julian Stewart, Leslie White was based on technology determinism, right? तो इसके बारे में लिखना शुरू करो. Leslie White propounded the theory of neo-evolutionism in terms of technological advancement and harnessing of energy per capita per year. To White, for culture development, investment of energy and efficiency in technology is required. He believed on technological determinism. To White, society is a three-layered process. Like a cake, right? A base, a filling, and then the decorating, right? So at the base of any culture, there are technological processes or technologies, right? At the base of any society or social processes, what is there? Technology or technological processes. And these technological processes give rise to social process, right? And these social processes give rise to ideological processes. पहले टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पे सोसाइटी है, और जैसी सोसाइटी वैसा बिलीफ है. क्लियर? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सोसाइटी एडवांस होगी. सोसाइटी एडवांस होने से आइडियोलॉजी एडवांस होगी, नए नए थॉट इंक्लूड होंगे, नई आइडियोलॉजी आएंगे, कल्चर, ट्रेड, बिलीफ, प्रैक्टिसेज, राइट? सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन
and technology is based on investment of energy, right? Muscle energy is also an energy, but if muscle energy is replaced by the machinery technology, more advancement, क्योंकि मशीनरी में एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा काम करेगी, एफिशिएंसी ज्यादा है. सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उससे कल्चर डेवलपमेंट. सो तो किसी भी कल्चर का बेस क्या है? टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस which give rise to social processes, which give rise to ideological processes. अब इसी बात पे मार्क्स ने कहा था ना, इकोनॉमी लीड्स टू सोसाइटी एंड सोसाइटी लीड्स टू पॉलिटी. पॉलिटी इज आइडियोलॉजिस्ट, राइट? इकोनॉमी मिस द बेस, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सबका बेस क्या है? इकोनॉमी तो है. तो उसने कहा था मार्क्स ने, इकोनॉमी लीड्स टू सोसाइटी एंड सोसाइटी लीड्स टू पॉलिटी. ऑर्गेनिक एक 3 लेयर स्ट्रक्चर. इसने बेस में क्या लगाया? टेक्नोलॉजी, राइट? सो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेसेस एंड. तो किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी राइट. तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही सोशल और उतना ही ऐसे बढ़ेगी, राइट? तो टू लेस्ले वाइट कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? सबसे पहले कौन आए थे? उसके बाद और उसके बाद तो चौथा सबसे बड़ा रहा, दैट इज एनर्जी रिवोल्यूशन दैट शेप्ड द वर्ल्ड. ये इसने 4 स्टेजेस बताई, राइट? बाकी सिविलाइजेशन से ऊपर कुछ भी नहीं लिया, इसने लिया क्या लिया? एनर्जी रिवोल्यूशन. कल बाकी बचा हुआ करेंगे. लेस्ले वाइट और फिर जूलियन स्टीवार्ट.